Hello everyone. Today I'll be talking about motions of the earth. Class 6 Geography. Let's talk about some basic facts or the basic things which you should know before we begin with the chapter. So, the sun moves across the sky throughout the day. But in reality, the sun is stationary and it is the earth which is moving, and it is a large and it's a basic misconception which is there in the students mind that it is the sun which is moving, but in reality it is not. It is the earth that is moving. Like all the other planets and the earth, they have two type of motion, and in this chapter we'll be talking about these two types of motions. First is rotation. Rotation is spinning on its axis. Here you can see the earth is rotating on its axis, and when it goes around the sun, it is revolution. But in revolution, it do not go or it do not take around anywhere. It goes around the sun along a fixed path that is called orbit, and this orbit is elliptical or elongated in shape. Okay, इस पाथ को हम elliptical या elongated बोलते हैं. Now this is the axis of the earth, which which is tilted at the angle of 23.5 degree. Here you can see that the earth revolves from west to east, not east to west. All the planet except Uranus and Venus, they rotates in east to west. Other than rest other planets, they revolve from west to east. Now, axis angle with the orbital plane. Here you need to understand one thing. Let's first understand that this just imagine that the earth is sphere. Now this is the 4 parts that I have done. 1/4 part we'll be talking about right now. The complete angle of the circle is 360 degree, that you know, and in the previous chapter you have read that the distance from the equator to the poles is 1/4 of the circle. Now if the complete circle is 360 degree, then 1/4 of 360 will be 90 degree. That means all 4 parts will be of 90, 90, 90, 90. That makes 360 degree. Now when you will calculate, you can see the north pole and the south pole, and the axis is tilted at the angle of 23.5 degree, and since from north pole to the 0 degree equator the full is 90 degree, so 90 minus the angle of axis ka tilt, that is 23.5 degree, will be 66.5 degrees. So if anybody will ask you that what is the angle that axis make with the orbital plane, it will be 66.5 degree. So sorry, it is 66.5 degree, that is 90 minus 23.5 degree, that is 66.5 degree. Here you must get confused that why these dotted lines have been drawn. We already know that the axis is tilted at the angle of 23.5 degree, but this plane of the earth orbit, which is called the orbital plane, which have been made with a dot, to calculate the angle, to find out the angle with the orbital plane. Orbital plane क्या है? The orbit through which the earth goes, उसको हम अज्यूम करके डॉटेड लाइंस में बनाए हैं और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. नाउ वो हम जानते हैं कि 1/4 इज़ 90 डिग्री, और हमको एक्सिस का भी एंगल पता है 23.5 डिग्री, तो 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 66.5 डिग्री आएगा. दैट मीन्स कि एक्सिस का एंगल विथ द ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री होता है. नाउ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द नेम सजेस्ट इट्स ओनली illusion. So circle of illumination is an imaginary circle that marks the transition between darkness
and the brightness on the earth's surface. On the other hand, we can also say that it divides the lit up portion of the earth from the darker portion. You can see the sun rays are falling towards the earth. The part of the earth, जो part earth का expose है sun के तरफ, उधर डे है, और जो पार्ट एक्सपोज नहीं है सन की तरफ वो नाइट है ना. जैसे मैंने पहले भी बताया था, अर्थ की सारी प्रॉब्लम्स उसकी शेप के वजह से होता है. दैट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज इन बिटवीन. ये एक ऐसा शेप है कि कभी भी हम चाहे लेफ्ट से देखें, राइट से देखें, चाहे हम किसी भी एंगल से देखें, अर्थ का शेप एक जैसा ही दिखेगा, जो कि जियोइड है. flattened at the poles and bulge in between, and because of the tilt of the axis also. A lot of problem that I cannot say this is a problem, but a lot of things which the earth, the characteristics that we always talk about, it happens just because of the shape and the axis of the earth. तो अर्थ का एक्सिस और अर्थ का शेप जो है वो ऐसा है कि अगर अर्थ पे लाइट पड़ती है एक तरफ से, तो वो सिर्फ अर्थ के हाफ पोर्शन को ही लाइट करती है, हाफ डार्क में रहता है. मतलब जो पार्ट अर्थ का सन के तरफ रहेगा उधर दिन रहेगी, और जो पार्ट अर्थ के सन के तरफ नहीं रहेगा उधर रात रहेगी. नाउ only you need to understand here is the circle of illumination is the circle that divide the day from night on the earth. Now you can see the circle of illumination keeps on changing. ठीक है, ये बदलते रहता है. क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, रिवॉल्व भी कर रहा है. ओके, सो ये हमेशा बदलते रहेगा क्योंकि हाफ पोर्शन पे, और जब बदलेगा तो जितने हाफ पे लाइट पड़ रही होगी उधर दिन और नेक्स्ट पार्ट पे रात. क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ रोटेशन. नाउ one of the most important point of this chapter is circle of illumination do not coincide with the axis. Okay, यानी कि circle of illumination क्या एक्सिस से कोइंसाइड करता है? क्या वो मिल जाते हैं? बिल्कुल नहीं. एक्सिस फिक्स्ड है, 23.5 डिग्री पे एक्सिस इज फिक्स्ड. ओके, ये चेंज नहीं होता है. बट अभी इसके पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया दैट सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कीप चेंजिंग. क्यों? क्योंकि रोटेशन हो रहा है अर्थ पे. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ हियर सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन चेंज होते रह रहा है, एक्सिस फिक्स है, तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो. It is the axis of the earth is tilted at the angle of 23.5 degree and it is fixed, and circle of illumination keeps on rotating. That's why they never coincide each other. Okay, now let's understand the concept of a leap year, the most easiest topic of this chapter. जैसे beginning में इतना तो हम लोगों ने KGPGs में ही पढ़ा होगा and in the previous classes also, that actual time, जैसे फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो दैट रोटेशन, अर्थ को अपने जगह पे रोटेट करने में कितना टाइम लगता है. वी नो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 6 सेकेंड्स, ये एक्चुअल टाइम है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लिखते हैं. नो प्रॉब्लम, चल 24 आवर्स मानते हैं. लेकिन अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 365 एंड क्वार्टर डेज लगते हैं, यानी 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. यानी एक्चुअल टाइम द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज 365 डेज एंड 6 आवर्स. नाउ अब लीप ईयर का कंसेप्ट आया कैसे? जो कि मैंने पहले बताया कि अर्थ का एक्चुअल रेवोल्यूशन टाइमिंग जो है वो 365 डेज एंड 6 आवर्स है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस हम एक साल को 365 दिन का ही मानते हैं, क्योंकि कैलेंडर्स बनाना, शेड्यूल करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हम 6 आवर्स को हर बार मेंटेन नहीं कर पाएंगे. एज मैंने पहले भी बोला, जैसे अर्थ को रोटेट करने का जो टाइमिंग है, अर्थ का रोटेशन का जो टाइमिंग है वो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 6 सेकेंड्स है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लिख देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. द सेम वे रेवोल्यूशन में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, बट हमारे सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए
हम एक साल को 365 दिन का मानते हैं। अब 365 दिन का मानते हैं तो मतलब बचा रहे हैं हम 6 घंटा। अब वो 6 घंटा हम 4 साल तक बचाते हैं। क्यों 4 साल तक बचाते हैं? क्योंकि 6 + 6 + 6 + 6 विल मेक 24 आवर्स, और 24 का मतलब क्या हुआ? एक दिन। ओके, सो एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को एक दिन लगता है, तो हमको 24 घंटा इसको बनाना था। इसलिए हमने क्या किया कि जो साल लिया हम लोगों ने वो 365 डेज़ का रख दिया, और उसके बाद क्या किया, हर चौथे साल को जो हमने देखा, उस चौथे साल में 6 + 6 + 6 + 6 जो आवर्स हमने बचाया था उन चारों साल का, उसको ऐड किया, और जो नेक्स्ट ईयर बना यानी कि चौथा साल जो हुआ वो हो जाता है एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर मैंने बोला कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 365 दिन का एक साल कर दिया गया, अब 6 घंटे बचा के हम लोगों ने 24 घंटा इकट्ठा किया, चौथे साल में हमने वो एक दिन उस ईयर में ऐड कर दिया, तो वो ईयर हो गया 366 डेज़ का। अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज़। इसीलिए तो फेब कभी 28 डेज़ का, तीन साल 4 साल लगातार वो 28 डेज़ का, 3 साल लगातार वो 28 डेज़ का होगा, लेकिन चौथा साल जो होगा वो 29 डेज़ का होगा। ओके, और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें विच यू शुड नो। अब प्रॉब्लम ये आता है कि ये तो क्लियर हो गया कि फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम 365 डेज़ का रेवोल्यूशन टाइम मानते हैं, और देन चौथे साल में हम वो 6 करके ऐड करते हैं, एंड देन हम एक डे इकट्ठा कर लेते हैं, एंड वो 365 में एक डे ऐड कर देते हैं, और देन हम उसको 366 यानी 366 डेज़ का एक वो जो फोर्थ ईयर होता है वो 366 डेज़ का हो गया। ये हमने बना दिया। लेकिन इफ़ यू विल गेट द ईयर, इट इज़ नॉट ईजी नो कि याद रखें कि अच्छा ये चौथा साल था, ये लीप ईयर है या क्या है। टू फाइंड आउट दैट विच ईयर इज़ अ लीप ईयर, द मोस्ट ईजिएस्ट वे टू फाइंड इट आउट इज़ डिवाइडेड बाई 4। इफ़ यू विल डिवाइड इट, और अगर वो पूरा कट जाता है 4 से विथ नो रिमाइंडर लेफ्ट, देन इट इज़ अ लीप ईयर। यू कैन सी, लेट्स चेक दैट 2042 विल बी लीप ईयर और नॉट। ओके, यहाँ देखो 2042 will be divided by 4. Okay, if you will divide it, the remainder will be coming, so it is not a leap year. If you will divide 1996 from by 4, what you will get? The remainder will be 0. That means 1996 is a leap year. Okay, you just have to calculate, कोई भी ईयर दिया हो उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स वो लीप ईयर है, और अगर नहीं आता है, कुछ रिमाइंडर बचता है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ लीप ईयर। आई होप आई एम क्लियर ना। रोटेशन, मैंने पहले बोला रोटेशन कंप्लीट एक अपने जगह पे अर्थ को रोटेट करने में 24 आवर्स 23 आवर्स 56 मिनट एंड 6 सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटा लेके चलते हैं। ओके, वी कंसीडर एज वन डे। ठीक है ना। अब व्हाट इफ द अर्थ विल नॉट रोटेट? अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा? इट्स अ हॉरेबल सिचुएशन विच कैन बी क्रिएटेड एंड विच कैन बी इमेजिन्ड। जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही होगी वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा, जो पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही होगी वो एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा। ओके, दैट विल बी फ्रीजिंग कोल्ड। द पार्ट विल which will be exposed towards the sun, that will be very hot, and the part which will be away from the sun, which will be freeze, then that part will be freezing cold. Okay, and both the conditions are not suitable. Now the effect of rotation से क्या क्या होता है? रोटेशन से सबसे पहली बात डे एंड नाइट, occurrence of day and night. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से मैंने यही बताया है, बिकॉज रोटेशन की वजह से। नाउ सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। द विंड एंड द ओशन करंट में जो भी वेरिएशंस आते हैं, एंड द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर, these also affect. Okay, now these are the basic things. The illuminated portion of the earth experiences day and the other part experience night. I hope it is very clear because it has been dealt earlier only. Now the most important part of this chapter, you need to understand it properly.
The basic things I've already told you, that the earth revolve around the sun in an anti-clockwise direction, west to east रिवॉल्व करता है. और वो कितना टाइम लेता है रिवॉल्व करने के लिए? 365 डेज एंड 6 आवर्स. यानी सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको 1 साल लग जाते हैं. 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैंने लीप ईयर का कैसे अकरेंस होता है ये भी बताया है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपन्स एंड हाउ टू अंडरस्टैंड दिस मोशन ऑफ द अर्थ. What is solstice? What is equinoxes? So, जब हम revolution पढ़ रहे हैं तो effects क्या होते हैं? First of all, let's understand the effects of the revolution. Revolution से क्या क्या होता है? Day and night का जो variation होता है, the length of the day and night, distribution of heat over the earth, and occurrence of season. The most important that you need to understand revolution से occurrence of seasons है. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट क्या है? इतना बहुत क्लियरली सबको पता होगा दैट समर के टाइम में क्या होता है? डेज लॉन्गर होते हैं और नाइट शॉर्टर होता है. विंटर के टाइम में रात बड़ी होगी, दिन छोटा होगा. ये जो वेरिएशन है ना लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये क्यों होता है? यू नो, बिकॉज ऑफ द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद इट एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट 66.5 डिग्री. मैंने पहले इन द बिगिनिंग जब मैं ये समझा रही थी कि एक्सिस ऑफ द अर्थ का इंक्लिनेशन विद द ऑर्बिटल प्लेन 66.5 डिग्री है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ये जो वेरिएशन होता है ना, लेंथ variation of the length of the day and night, it happens because of the axis which is inclined at the angle of 66.5 degree. अब इक्वेटर का जब हम लेते हैं तो ये वेरिएशन बहुत ही मिनिमम होता है. द वेरिएशन इज मिनिमम एंड द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ थ्रू आउट द ईयर. जब हम इक्वेटर की बात करते हैं तो डेज आर लॉन्गर इन समर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर. पोल्स पे क्या होता है? ये वेरिएशन मैक्सिमम हो जाता है. इक्वेटर पे बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं. क्यों? क्योंकि लाइट का जो रे है सन का वो डायरेक्टली पड़ रहा है. पोल्स पे स्लैंटिंग जा रहा है और कभी कभार तो पहुंच भी नहीं पाता है. दैट्स वाई देर इज़ अ कंटिन्यूस डे लाइट ऑफ 6 months ड्यूरिंग द समर और कंटिन्यूस डार्कनेस ऑफ 6 months ड्यूरिंग द नाइट. ओके, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट for the people who live near the poles. You'll see that North Pole is inclined towards the sun and the South Pole is turned away from it. I will be clearly identifying and I will be telling you how the different situation on different dates they vary and what is the effect they create on the earth and the people who lives here. Let's first understand कि ये distribution of heat over the earth क्या है. okay, the part of the earth that will be tilted. सबसे पहले इन सब चीज़ों को समझाने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझनी होंगी कि जो भी हेमीस्फीयर, जो भी पार्ट, जो भी अर्थ का सरफेस विल बी टिल्टेड टुवर्ड द सन रिसीव्स द वर्टिकल रे while the other will be receiving the slanting ray. अब वर्टिकल रे अगर किसी भी पोल, कोई भी पोल इंक्लाइंड है सन के तरफ तो उस पर रेज ज़्यादा पड़ रही हैं तो उस पर हीट ज़्यादा जाएगा. और जो पार्ट सन से दूर है उधर रेस कम जाएंगी. ऑब्वियसली इधर दिन रहेगा, उधर रात रहेगी. ओके, नाउ सीजन्स का जो है वेरिएशन आई विल बी टेलिंग यू. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस फिगर. ओके, एंड लेट्स अंडरस्टैंड that the position of the earth in its path of the revolution. अब हमने ये रेवोल्यूशन जो अर्थ का है हमने 4 डेट्स के हिसाब से समझाने की कोशिश की है. एंड योर NCERT ऑल्सो हैव टेकन 4 डेट्स ऑन विच द पाथ ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द 4 डिफरेंट डेट्स. और इस डेट से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ओके, let's move on. एक और basic चीज़ which I have kept it in this figure, that is the distance between the sun and the earth is 150 million kilometers. That is I think clear. Now इस figure से हम लोग समझते हैं. okay, चलो. so first of all हम लोग इस image की बात करेंगे. here you can see 21 जून की मैं बात कर रही हूँ. होता क्या है? northern hemisphere is tilted towards the sun. पहला हम
पहले अर्थ को देखना है। देखिए इसका जो टिल्ट है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के तरफ झुका हुआ है, यानी कि इधर दिन है और सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ रात होगी। द सदर्न हेमिस्फीयर इज फार अवे फ्रॉम द सन। इस सिचुएशन में होता क्या है, ठीक है, द सन रे फॉल्स वर्टिकली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे तेजी से, जैसे इक्वेटर पे डायरेक्ट रे पड़ता है वैसे ही 21 जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन इट। दैट्स वाई इस दिन यानी कि द रे ऑफ द सन आर डायरेक्ट एंड द डे लाइट इज ऑफ द लॉन्गर आर। सो 21 जून को क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि इफ़ हियर 21 जून को सिचुएशन क्या होता है, एनीबडी विल आस्क यू कि 21 जून का सिचुएशन क्या है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज फार अवे फ्रॉम द सन। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर receives the direct ray from the sun. That's why 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या होगा, 21 जून को सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? जो भी हेमिस्फीयर सन के तरफ टिल्टेड रहेगा उस पार्ट पे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब टिल्टेड है सन के तरफ, तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट रे पड़ रहा है और वो दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो जाएगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में उसी दिन 21 जून को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होगी। नाउ लेट्स कम, जैसे अब हमने 21 जून का बात कर लिया, अब हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये 23 सितंबर की बात कर रहे हैं। 23 सितंबर को क्या हो रहा है, देखिए, नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। हियर यू कैन सी, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है सन के तरफ। व्हाई? बिकॉज 23 सितंबर को क्या होता है, ऑन दिस डेट अगेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, क्योंकि घूम रहा है अर्थ, रोटेशन रेवोल्यूशन दोनों हो रहा है, तो इस पे कोई भी पोल, ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना सदर्न हेमिस्फीयर, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है, कोई भी पोल झुका हुआ नहीं है सन के तरफ। तो इक्वेटर पे सन डायरेक्ट रे फॉल करा रहा है, द रेज ऑफ द सन इज डायरेक्टली फॉलिंग ऑन इक्वेटर। तो इस दिन क्या होता है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ऑल ओवर द अर्थ, यानी 23 सितंबर को जितने घंटे का दिन होता है उतने घंटे की रात होती है, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। एट दिस टाइम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है, सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, क्योंकि 21 जून को हम लोगों ने अभी पढ़ा दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। कोई भी पोल, द whichsoever pole is tilted towards the sun, उधर समर है, and the pole which will be far away from the sun will be having winter। 23 सितंबर को क्या हो रहा है, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है, तो सन का जो रे है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल हो रहा है, तो इक्वल डे एंड इक्वल नाइट का कंडीशन है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है। नाउ कमिंग टू द थर्ड पोजिशन एंड द थर्ड डेट, यहाँ हम देख रहे हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज फार अवे फ्रॉम द सन। इज क्लियरली विजिबल है, जैसे कि सदर्न हेमिस्फीयर पे दिन है, समर है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रात है, यानी विंटर। दिन और रात को हम लोग इसमें मोशंस में ऐसे ही समझते हैं। अब 22 दिसंबर को क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले मैंने बोला सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, 21 जून को मैंने बोला था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। वैसे ही व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन। अब 22 दिसंबर को एक ऐसा दिन आएगा, ऑन 22 दिसंबर इट विल बी हैविंग द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि दिन है, समर है, तो व्हेन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन, देन ऑन 22 दिसंबर
in the southern hemisphere it will be the longest night and the shortest day. वही नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? कंडीशन क्या हुआ? सदर्न हेमिस्फीयर में क्लियरली मैंने बोला कि अगर समर है तो शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट है. वैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? 22 दिसंबर को longest day and shortest night. Are you understanding my point? Yes. So 21st जून और 22 दिसंबर, 21st जून एंड 22nd दिसंबर को हम समर सोल्स्टिस और विंटर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं. 21st जून को हम समर सोल्स्टिस बोलते हैं, 22nd दिसंबर को हम विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं. अब सोल्स्टिस का मतलब क्या है? सोल्स्टिस का नॉर्मल लिटरल मीनिंग इज सन स्टैंडिंग स्टिल. Okay, it is believed that the sun traveled around the earth and 21st जून को मैंने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन, और 22 दिसंबर को मैंने बोला था दैट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन. दैट्स व्हाई द सन इज स्टिल एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर on 21st June and the sun is still at tropic of Capricorn on 22nd December. That's why summer solstice 21st June, 22nd December winter solstice. Now the last part is the day is 21st March. ठीक, 21st March पे क्या होता है? Again यहाँ पे कोई भी पोल इज, none of the pole is tilted towards the sun. कोई भी पोल tilted नहीं है. इक्वेटर को डायरेक्ट रे मिल रहा है. The equator is receiving the direct ray from the sun. All the places of the on the earth, पूरे अर्थ पे इक्वल दिन और इक्वल रात वाला कंडीशन, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात वाला कंडीशन होता है 21st मार्च को और 23rd सितंबर को. ओके, द नदर्न हेमिस्फीयर इस टाइम पे क्या होगा? नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाएगा. अब हम 21st मार्च को और 23rd सितंबर को इक्विनॉक्सेस का कंडीशन बोलते हैं. अब इक्विनॉक्स का क्या मतलब होता है? इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्वल नाइट्स. मतलब द सन इज ओवरहेड. इन दोनों कंडीशंस पे मैंने यही बताया था कि नन ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ओनली द इक्वेटर इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन. दैट्स वाई पूरे अर्थ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट का कंडीशन होता है. पूरा दुनिया 21st मार्च और 23rd सितंबर को 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात एक्सपीरियंस करता है. दिस इज़ अ बॉक्स info sharing from my side so that it will be very much clear to you. जैसे मैंने पहला, I am reiterating again, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, 21st June को tropic of Cancer will be receiving the direct ray, and when the southern hemisphere is far away from the sun, then it is winter there. Sun is vertically overhead at tropic of Capricorn on 21st June, और tropic of Cancer में 21st जून पे सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे द सन इज़ डायरेक्टली फॉलिंग. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द लॉन्गेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट. नदर्न हेमिस्फीयर में व्हेन द नदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन तो वहाँ समर है. व्हेन द सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन वहाँ समर होगा. विच सो एवर हेमिस्फीयर विल बी फार अवे फ्रॉम द सन, उधर विंटर होना ही है. ओके, एंड दीज आर द नॉर्मल वेरिएशंस एंड द इन्फो शेयरिंग so that you can read it and get connected with. Now the important dates again, 21st मार्च पे क्या कंडीशन होता है? मैंने पहले ही बोला है, इक्वेटर इज रिसीविंग द डायरेक्ट रे फ्रॉम द सन, नन ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. सो यहाँ क्या होगा? इक्वल डे इक्वल नाइट. The whole earth will be experiencing equal day and equal night. 21st जून को क्या होगा? When the northern hemisphere is tilted towards the sun, 21st जून को tropic of Cancer will receive the direct ray from the sun. 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी. ओके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रे रिसीव कर रहा है. 21st जून को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस. नेक्स्ट 23rd सितंबर, अगेन इक्विनॉक्स का कंडीशन. When none of the pole is tilted towards the sun, equator is receiving the direct ray from the sun, and again none of the pole is tilted. That's why पूरा अर्थ equal day और equal night का वेरिएशन देखता है.
12 घंटा दिन, 12 घंटे रात, 12 घंटे रात. 22nd December, when the southern hemisphere is tilted towards the sun and northern hemisphere is far away from the sun. इस दिन ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन यानी 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पे सन का रे डायरेक्ट पड़ता है. तो इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इस 4 पोजिशंस पे अर्थ का कंडीशन पढ़ रहे हैं. सो दैट क्योंकि बिकॉज सोल्स्टिस की हम बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी सन स्टैंडिंग स्टिल पोजिशन पे आया है उस पोजिशन पे करके वी हैव टॉक्ड अबाउट revolution and its effect that I have already dealt, about the variation of length of day and night, distribution of heat over the earth, occurrence of seasons, and the occurrence of different seasons in different times of the year. अब seasons क्यों occur होते हैं उसके भी 2 reason हैं. एक तो revolution के वजह से और एक inclination of the earth axis at the fixed angle and the direction. I hope I'm clear. Thank you so much, everyone.